Hi everyone, today I am here with the topic of dialogue completion. So let me start with the introduction of it. The word dialogue means a conversation between two persons. A conversation can be based on some discussions, greetings, some question answer or comments on a particular topic. So basically it means when two person talks with each other, meet with each other and do some questions and answerings, so that is called our dialogue completion. Dialogue is a tool of narration which is frequently used in our day-to-day life, in stories, plays, drama and also in novels for an effective communication. As we all know that कि dialogue को हम हर जगह पे यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारी डे टू डे लाइफ में, स्टोरीज़ में, प्लेज में, ड्रामास में, नॉवेल्स में और कम्युनिकेशन के अंदर. The skill of dialogue writing includes writing an exchange of conversation between two person or on a given situation. So dialogue अपने अंदर क्या इंक्लूड करता है? एक दूसरे के साथ अपनी कन्वर्सेशन चेंज करना in a situation. The exercises are generally a dialogue with some incomplete sentences. Whenever we get some exercises, they are just incomplete sentences and we have to complete them. The students are supposed to complete the sentences in a suitable manner. जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने अच्छे से सपोज होने चाहिए कि उन्हें बहुत ही सूटेबल मैनर में वो आना चाहिए. However, a careful study of context give a clear hint about the incomplete sentence. देखिए, जब भी हम कभी भी डायलॉग कंप्लीशन स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो सबसे पहले वी हैव टू स्टडी द होल पैराग्राफ. सो देन वी विल फाइंड आवर आंसर इन द कंप्लीट सेंटेंसेस. नाउ द थिंग्स टू द रिमेंबर. रीड द गिवन कन्वर्जेशन थॉरली. जो भी आपको कन्वर्जेशन दी हुई है, जैसे कि हमारे पास आगे कन्वर्जेशन है, मैं आपको दिखाऊंगी. जो भी हमारे पास दी हुई हैं कन्वर्जेशंस, वो हमें बहुत ही थॉरली रीड करके सॉल्व करनी होती हैं. फ्रेम अ क्लियर आइडिया अबाउट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन. हमें पहले हमारी जो ऊपर हेडलाइंस दी हैं, जो हमारे मेन पॉइंट्स दी हैं, फर्स्टली वी हैव टू रीड देम, ताकि हमें ये पता लग सके कि उनका पॉइंट ऑफ डिस्कशन है क्या. In an exercise, there are 4 to 5 incomplete sentences. As we get exercises, they have 4 to 5 incomplete sentences. With the help of context in the previous and next sentences, obtain general idea about the incomplete sentence. हमारी जो कंटेक्स्ट है, जो हमारा प्रीवियस कंटेक्स्ट है या नेक्स्ट सेंटेंस है, वो हमें आइडिया देता है कि कैसे हमें अपना सेंटेंस कंप्लीट करना है. फर्स्ट एंड ऑल्सो लुक एट द पंक्चुएशन. लाइक पंक्चुएशन, एज वी ऑल नो, पंक्चुएशन is like a sign of exclamation or a question mark, full stop, etc. तो हम जब भी सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें इन पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए. बी रेलेवेंट टू द पॉइंट. अपने पॉइंट को अच्छे से रीड करें. So now let us study some examples. So firstly, there is given, like dialogue completion, you have seen that Bunty and Billu are in same class. They have met after a long school break. Read the conversation between them and complete the dialogue in any suitable way. Write your answer in the space given below. The first one has been done for you. देखिए, एज एग्जाम्पल उन्होंने फर्स्ट किया है. सो लेट मी रीड द कन्वर्जेशन फॉर यू. बिल्लू: Hi Bunty, how was your vacation? Bunty: Oh, pretty good. I really enjoyed a lot. How did dash? Well, I spent most of the time dash. Oh, I understand. Then you must have a lot of fun in the village with your grandparents. By the way, dash, question mark. They live in
the village Kashipur. It is about 300 kilometers from Delhi. Anyway, tell me dash vacation. I learned basketball from an expert. Now I am sure that I will be selected in the school team. So let us go and solve this. So, firstly, oh, pretty good. देखिए, पहले बिल्लू ने बंटी से पूछा कि तुम्हारी वेकेशंस कैसी थी। फिर उसने बोला मेरी अच्छी थी, आई रियली एन्जॉयड अ लॉट। फिर उसने जवाब दिया बिल्लू ने कि मैंने तो वेल आई स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसने जवाब दिया ना, तो अब उसने क्या क्वेश्चन पूछा होगा ये हमें अपनी नेक्स्ट लाइन बेस्ड पता लगेगा। सो उसने पूछा होगा हाउ यू स्पेंट योर वेकेशन, हाउ डिड यू स्पेंट योर वेकेशन। तो पहले बंटी ने पूछा हाउ वाज योर वेकेशन, फिर उसने बोला अच्छी थी। फिर उसने आई रियली एन्जॉयड अ लॉट। फिर ठीक है, फिर उसने पूछा होगा कि तुम्हारी कैसी थी, तभी तो बिल्लू ने ऐसा जवाब दिया वेल आई स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, ओ आई अंडरस्टैंड देन यू मस्ट हैव अ लॉट ऑफ फन इन द विलेज विद योर ग्रैंड पेरेंट्स। बिल्लू ने जवाब दिया होगा कि मैंने अपना ज़्यादातर टाइम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ स्पेंड किया है। तभी तो उसने बोला ना कि विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, तुमने मज़े किए होंगे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन रहा है या क्या आंसर बन रहा है, वेल आई स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन द विलेज विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। फन इन द विलेज विद बाय द वे। अब बाय द वे डैश, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, सो वी हैव टू रीड द नेक्स्ट लाइन्स। दे लिव इन काशीपुर। उसने जवाब दिया बिल्लू ने कि वो काशीपुर में रहते हैं। तो इसका मतलब कि बंटी ने उससे पूछा होगा कि वेयर डिड योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव, है ना। तो तभी तो उसने ऐसा जवाब दिया कि दे लिव इन काशीपुर। सो यहाँ पर आएगा बाय द वे वेयर योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव। ओके, अब उसने बोला दे लिव इन काशीपुर, इट इज़ अबाउट 300 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। एनीवे टेल मी व्हाट। अब बंटी ने बिल्लू को क्या आंसर दिया, आई लर्न बास्केटबॉल फ्रॉम एन एक्सपर्ट, कि मैंने एक एक्सपर्ट से बास्केटबॉल सीखी है और अब मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मैं अपनी फ़ुटबॉल टीम में ज़रूर सेलेक्ट होऊंगा। तो फुटबॉल या बास्केटबॉल। सो उसने क्या पूछा होगा कि उसने उसने अपनी वेकेशंस के बारे में बताया। तो उसने पूछा होगा व्हाट डिड यू लर्न इन योर वेकेशंस। तो उसने कहा आई लर्नड बास्केटबॉल फ्रॉम एन एक्सपर्ट। सो if you understand this, it is a very interesting topic. So let's move to our next. So conversation of Varun and his mom. Varun's result was declared and he brought home his annual report card. Read the dialogue between him and his mother and complete in a suitable way. अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऊपर जो हमें हेडलाइंस या हेडिंग्स दी हैं वो पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसी से हमें पता लगता है कि चल क्या रहा है इस कन्वर्सेशन में, किस चीज़ की बात हो रही है। सो फर्स्टली उसने अपना रिज़ल्ट दिखाया तो मॉम ने उसे क्या कहा, वेल आई एम हैप्पी टू सी योर ग्रेड्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स दिस ईयर। तो उसकी मॉम ने कहा कि मैं तुम्हारे इस साल के इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स देखकर बहुत खुश हुई। तो वरुण ने कहा कि थैंक्स मॉम, इन फैक्ट आई एम ओनली वन इन द क्लास हु हैज़ गॉट ए ग्रेड इन इंग्लिश। तो उसने अपनी मॉम से कहा कि
क्लास में सिर्फ मैं ही हूँ जिसने इंग्लिश में ए ग्रेड लिए हैं, ठीक है। फिर उसकी मॉम ने कहा दैट्स ग्रेट, ओह अच्छी बात है, बट वाई डैश क्वेश्चन मार्क, यू नो मॉम आई ऑलवेज फॉरगॉट द डेट इन हिस्ट्री। मतलब उसकी मॉम ने उससे पूछा है कि मतलब यहाँ पर उसकी मॉम ने उससे एक क्वेश्चन किया है और उसने उसका नेगेटिव वे में आंसर किया है कि मैं हमेशा भूल जाता हूँ, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो उसने इस तरह का आंसर दिया क्योंकि उसके ग्रेड्स लेस आए हैं हिस्ट्री में, और हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो इसलिए हम क्वेश्चन यहाँ पर पुट करेंगे बट वाई यू स्कोर्ड लेस ग्रेड्स इन हिस्ट्री। फिर उसकी मॉम ने उससे तो उसने बोला कि आप तो जानते ही हैं कि मैं हिस्ट्री में डेट्स भूल जाता हूँ, सिमिलरली योर डैश सन। मतलब उसकी मॉम ने फिर से उससे कुछ पूछा है या बताया है। येस मॉम आई कुड नॉट सिंग वेल व्हेन द टेस्ट इन म्यूज़िक वॉज हेल्ड। तो अब उसने म्यूज़िक टेस्ट की बात की है और सिंगिंग की बात की है। तो उसकी मॉम ने उससे पहले म्यूज़िक के रिज़ल्ट के बारे में पूछा होगा, तभी उसने म्यूज़िक के लिए आंसर दिया है। सो व्हाट वुड बी द आंसर? Grades in music is also very less. Yes mom, I could not sing well when the test in music was held. So अब उसकी मॉम ने उसे डैड के बारे में बताया है, तो उसने रिटर्न के बारे में, तो उसने पूछा होगा हैज़ द डैड रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस। तो उसकी मॉम ने उसे बताया कि नहीं, उसके डैड अब तक नहीं आए हैं। तो वरुण ने कहा विल, अब उसने पूछा विल डैश कार्ड, ठीक है। यहाँ पर कार्ड कौन सा है, रिपोर्ट कार्ड की बात चल रही है। सो उसकी मॉम ने कहा ऑफ कोर्स ही विल बी हैप्पी, वी नो दैट यू ट्राइड योर बेस्ट। तो यहाँ पे क्या था कि उसने अपनी मॉम से ऐसा क्या पूछा कि उन्होंने कहा कि ही विल बी हैप्पी, हाँ वो खुश होंगे इसको देखकर, क्योंकि वो जानते हैं कि तुमने अपना बेस्ट दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, विल ही बी हैप्पी टू सी माई एनुअल रिपोर्ट कार्ड। सो यहाँ पर हमारी ये सारी कन्वर्सेशन ख़त्म होती है। वरुण ने अपनी मॉम को थैंक्स बोला और बार बार थैंक्स किया कि मॉम उसकी अप्रिसिएशन कर रही हैं। सो थैंक यू गाइज, हाउ वाज दिस वीडियो, प्लीज़ टेल अस इन कमेंट, एंड इफ़ you like this video, please like, share, subscribe and comment us. Please don't forget to press the bell icon to get all notifications. Thank you.